Welcome to my YouTube channel. In this session, we are going to learn first law of thermodynamics at the rate thermal point. Now, let's start the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics is also known as law of conservation of energy. As we all know that law of conservation of energy states that energy can neither be created or nor be destroyed, but it can transfer from one body to another. और फर्स्ट लॉ में यही होता है कि हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ये एनर्जी डिपेंडेंट लॉ होता है। ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस आर देयरफॉर सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब जितने भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर प्रोसेस होते हैं वो एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। दिस मीन्स दैट हीट एनर्जी कैन नॉट नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ना ही क्रिएटेड हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। एज यू कैन सी द डायग्राम, इट रिप्रेजेंट टू स्टेट्स हियर। द स्टेट वन इज वेयर हीट एंड वर्क आर नॉट एप्लीकेबल ऑन स्टेट वन। इट इज अ सिंपल डायग्राम। इट इज अ जस्ट लाइक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एंड गैस मॉलिक्यूल्स आर अंडर इट। व्हेन वी अप्लाई हीट देन इट comes under the into work and piston moves downward and the gap between the gas molecules become less, and this is stored as the internal energy. As thermodynamic system is in thermal equilibrium state possess a state variable called the internal energy. As we talked earlier about the internal energy, the change in internal energy is equal to the difference of heat transfer into the system and work done by the system. Internal energy is represented by U and change in internal energy is represented by delta U. So delta U is equal to Q minus W. Delta U is change in internal energy, Q is heat added to the system, W equals to work done by the system. Now let's talk about heat and work. Heat is a low grade energy and work is a high grade energy. Internal energy is a function of temperature only. मतलब कि इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और टेम्परेचर अगर घटता है तो इंटरनल एनर्जी भी घटेगी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो होते हैं, एक प्रोसेस के लिए होता है, एक साइकिल के लिए होता है। प्रोसेस के लिए हम पढ़ चुके हैं, ये प्रोसेस के लिए। अब हम साइकिल की बात करते हैं। साइकिल में क्या होता है, हीट इंटरेक्शन जो है वर्क इंटरेक्शन के इक्वल हो सकता है। द नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू द नेट वर्क इंटरेक्शन। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स here the work done for each complete cycle must be W equal to Q1 minus Q2. Here the work done for each complete cycle is just the difference between Q1 observed by the engine. It is the higher temperature Q1 and Q2 is the lower temperature, so the difference is given for to calculate work. First law of thermodynamics tells about these things. First it will tell about the law of conservation of energy, and secondly it will tell about heat and work transfer. We will discuss in next series for heat and work interactions. Case number 3, he discuss the concept of enthalpy. Enthalpy is denoted by H and H equal to U plus PV, where U is internal energy, P is pressure and V is volume. It is also known as flow and non-flow work, as we discussed in yesterday's class. There are two properties in thermodynamics, intensive property and extensive property. Intensive properties are the property which is independent on mass, and extensive property are the property which is dependent on mass. जहाँ पे भी इंटेंसिव की बात हो वहाँ पे इंडिपेंडेंट होगा। ये ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं फॉर लॉन्गर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइकिल, जैसा कि हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर साइकिल जो फर्स्ट लॉ जो साइकिल के लिए है, जिसमें हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है जो ये स्टेट 1 और स्टेट 2 को रिप्रेजेंट करता है। ये पाथ ए, बी और सी को रिप्रेजेंट करता है। अगर जैसे हम चलना चाहें स्टेट 1 से स्टेट 2 को पाथ ए और बी से, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जितनी भी हीट लगेगी पाथ ए से आने में 1 से 2 और जितनी हीट लगेगी पाथ 2 से बी के थ्रू जाने में 1, वो इक्वल होगा जितना वर्क होगा ए के थ्रू आने से 1 से 2 और बी के थ्रू जाने से 2 से 1, ये इक्वल होगा। अब ये दो डायग्राम हैं जिसमें ये दिखाता है कि स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहे हैं विद पाथ ए के थ्रू से पाथ बी की तरफ।
तो ये क्लॉकवाइज साइकिल है जिसमें हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है। जब हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का तो हम डिस्कस करेंगे कि पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल्स क्या होती हैं, पावर कंज्यूमिंग साइकिल्स क्या होती हैं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क इंटरेक्शन और हीट इंटरेक्शन नेगेटिव होगा और ये पावर कंज्यूमिंग साइकिल होगी। तो आपके लिए आज ये एक होमवर्क है कि आपको बताना है विच लॉ इज कॉल्ड क्वालिटेटिव लॉ इन थर्मोडायनेमिक्स, और आंसर आपको कमेंट करना है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।